40. Page number 40. You also can open it on your books if you have, and I am showing it over here. Why Shayan is not taking classes? To know, most of the high yield crops or fruit trees are susceptible to diseases. Susceptible means जिनके अंदर टेंडेंसी होती है, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डिजीजेस, उनमें रेजिस्टेंस है कि वो डिजीजेस को पकड़ सकते हैं। समझ लें आप, प्लांट्स की, क्रॉप्स की इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। So introduction of disease resistant genes into such crops or fruit trees enable them to resist diseases. ये जस्ट याद नहीं आपने करना, सिर्फ एक नोट है, आपने बस पढ़ना है कि इस तरह के जीन्स जो हैं दे आर now present. Number 2, insects called aphids. ये थोड़ा सा important है कि what we, और सारे बच्चे बेटे अपने माइक्स ऑन कर दें. Let me do it by myself. Okay. ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि उन इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है. The insects called dash damage the wheat crops. तो those insects which damage the wheat crops are known as aphids. 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 This problem can be solved by producing aphid-resistant variety genetic engineering techniques. ठीक है. Now पहली हमने application पढ़ी थी biotechnology की in the field of agriculture. Now we are going to study about food production and preservation. Number 2 application है ये. You can see there are different animals. This is cow. This is again for meat purpose, and this is goat meat. Now, what is the purpose of this? They are saying that by using different kind of biotechnology techniques, we can enhance the production of milk, and we can also enhance the meat production. So different तरह के injections, different तरह की जो चीजें हैं वो लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, बट दैट इज नॉट क्वाइट सेफ. बट आई थिंक हमें नेचुरली जो चीज अवेलेबल है हमें उस पर रिलाई करना चाहिए, बट इट इज गुड फॉर दोज जहाँ पे बिल्कुल ही खाने पीने की चीजें जो हैं वो नहीं एग्जिस्ट करती. जैसे हमने पीछे राइस का पढ़ा है कि राइस में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए देयर आर सो मेनी अदर वेज जो कि साउथ एशिया में लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं. Use of better quality genes in animals is producing high yields of milk and meat. You can see in the figure. Then products of better quality fruits and vegetables and increasing their shelf life. Shelf life means क्या मतलब है? Anybody knows what is the meaning of shelf life? Shelf lives. किसी को पता है क्या मीनिंग है shelf life का? Okay, shelf life basically एक वो लाइफ है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, जिस हद मीन्स जहां तक आप उसको यूज कर सकते हो. आफ्टर दैट शेल्फ लाइफ जहां तक वो एग्जिस्ट करता है, जहां तक वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, यू कैन से. जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, सिमिलरली शेल्फ लाइफ अगर उसकी गुजर जाए फ्रूट और वेजिटेबल्स की, तो क्या होता है, इट गेट्स एक्सपायर. वो या तो खराब हो जाता है या कोई ना कोई इशू हो जाता है. लाइक अगर आप देखें स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ बहुत कम है. वी कांट स्टोर इट फॉर लॉन्गर पर्पसेस. इफ यू सी चेरी दैट इज इन बॉक्सेस, तो उसकी भी शेल्फ लाइफ काफी कम है. सो इट्स डिफिकल्ट के वो हम उसको कोप अप कर सकें. सो होता क्या है, डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के साथ हमने ऐसे हार्मोन्स, ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए हैं जो कि उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएं तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो आपको शेल्फ लाइफ का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ लाइफ. Now you can see the diagram. This is showing better quality fruit and vegetables that are very beautiful. लेकिन वही बात है, खाने में इनका टेस्ट it's not like that, that is naturally present. But genetically modify करके हम somehow we can get good fruit and vegetables. You need to know vitamin B12 widely used in additive food and in some medicines is produced in high yielding cultures of bacteria. This is just a common. Who is
Move on the next page. Page number 41. This is important one topic now. Quite important paper में आता है अक्सर, ठीक है? So be very careful regarding that. This is about health. Health means the health of human beings, the health of animals. So we are now concerned with the health, that how biotechnology products or techniques are going to help out in curing different kind of diseases and how it can improve our health, या हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं. Last time, remember, we have discussed about vaccination, that how it is going to be formed, what is it contain, and how it is helpful. So जितनी भी आजकल medication है, जितनी भी vaccinations हैं, they are due to biotechnology. So biotechnology plays a very important role in the health section, right? It is very, very helpful nowadays, and more recent and new technologies are also helping a lot in this field. So biotechnology techniques are also used for curing. Curing means disease को खत्म करना, cure करना, यानी उसको ठीक करना. For curing diseases and improving health, the diseases for which previously no adequate treatment was available. Adequate treatment यानी sufficient treatment available नहीं था, can now be treated by using biotechnology techniques. Identification of root causes of disease means कि उसका root cause क्या है, why it is happening. जिस तरह कोविड का root cause ढूंढ रहे हैं कि why it is happening, how it affects the lungs, etc. Production of medicines for fighting against diseases, that means, and vaccination, and curing and correction of genetic defects, etc. are the major roles of this technology in developing better health. Various biotechnology products which are used to save lives include: number one, insulin. Insulin हम पढ़ चुके हैं, that is useful for diabetes mellitus or diabetics. Vaccines are usually used against many infectious diseases. Growth hormones useful for stimulating growth hormones are specially used sometimes in, जैसे आपने मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जाते हैं काउस को, ताकि उनकी ग्रोथ ज्यादा हो, मीट ज्यादा मिले हमें, एंड वी गेट मोर मिल्क. जो भी उनसे चीजें एक्सट्रैक्ट आउट हो सकती हैं उसको एनहेंस करने के लिए. देन बीटा एंडोर्फिन, दिस इज अ पेन किलर ड्रग, वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर ड्रग, जो कि पेन का इफेक्ट काफी हद तक नलिफाई कर देती है. सो दिस इज ऑल्सो due to this biotechnology. And interferon are antiviral proteins, and these are present in the form of injections. These are very powerful injections that are used in the health department. So these are some widely used applications in health department. ये सारी की सारी पांच की पांच टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, राइट? जैसे आपको इंटरफेरॉन पूछा जाए व्हाट इज इट, तो आपको पता हो दिस इज एन एंटीवायरल प्रोटीन एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ viruses treatment. Then very important topic, that what are important biotechnology techniques. ये पेपर में भी बहुत मर्तबा आपको आता है, that write a short note on important biotechnology techniques. तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ से लिखना है. So it is very important. Gene therapy, genetic testing, cloning पे जाने से पहले इस heading को गौर से याद करें और देखें और समझें इस चीज को कि these are the techniques which are going to be used to enhance द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, सबसे पहले जीन थेरेपी. अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें जीन्स जो हमारी बॉडी में है उनकी थेरेपी करेंगे. वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग, दैट चेंज समथिंग इन द जीन. और अब जब हम जीन की बात करेंगे तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कुछ ऐसी चीज चेंज करेंगे कि जो एबनॉर्मेलिटी है दैट कैन बी रिमूव्ड एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो जीन थेरेपी बेसिकली बहुत एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए. लाइक कैंसर में आपकी बॉडी में क्या होता है बेसिकली, इन कैंसर जो आपके बॉडी के अपने सेल्स हैं वही आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं और कोई इम्यून सिस्टम नहीं बिल्टअप होता कैंसर के अगेंस्ट. दैट्स वाई कैंसर की कोई वैक्सीनेशन स्टिल यू कांट सी. साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं
कि वहाँ पे कोई जो मेडिसिन है वो डिस्कवर कर सकें, बट राइट नाउ दे आर अनएबल टू डू दैट, नॉट इन द पाकिस्तान, अदर देन पाकिस्तान जहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज है वहाँ पर भी। सो व्हाट हैपेंस कि कैंसर में क्या होता है, आपकी बॉडी के अपने जितने भी सेल्स हैं वो आपकी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं और हर सेल मैलिग्नेंट सेल्स बनाना शुरू कर देता है जिसको हम कैंसर सेल्स कहते हैं। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जिस बंदे को कैंसर हो जाए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट द लेटर स्टेजेस, बिकॉज हमारी पूरी की पूरी बॉडी ईच ऑर्गन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द कैंसर एंड फाइनली डेथ हैपेंस। एंड एड्स का भी सेम यही केस है, देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर इट। In this process, defective genes are supplemented or replaced by normal genes. जब इन दोनों डिजीजेस को, इतनी खतरनाक डिजीजेस को क्योर किया जाता है तो इनके जीन्स के साथ रिप्लेसमेंट की जाती है एंड इफ इट वर्क्स तो हमारी लाइफ सर्वाइव कर जाती है। द अदर वन इज जेनेटिक टेस्टिंग। अब जेनेटिक टेस्टिंग है तो इट मीन्स ये कोई किस्म का डायग्नोस है, किसी किस्म का ऑब्वियसली जैसे कोविड अगर किसी को कोई शक है दे आर गोइंग फॉर टू टेस्टिंग, उसको डायग्नोस किया जाता है, देन हमें पता लगता है यार इसमें ऐसा है कि नहीं है। वो एक आम रैंडम टेस्टिंग है विच वी कैन डन इन द लैब्स। बट जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग इज वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज्ड फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। मीन्स अगर कोई डिजीज आप में इनहेरिट हुई है फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स तो उसको चेक करने के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं बिकॉज जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। सो उसको चेक करने के लिए हमें जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है एंड इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए, बिकॉज डीएनए के अंदर ही सब कुछ कोड हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इज इन द डीएनए। एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन अ चाइल्ड्स पैटर्निटी और पेरेंट्स इंसेक्टी। देखें जो बच्चे गुम जाते हैं, अल्लाह माफ करे जिसे आप कहते हो लावारिस हो चुके हैं जो बच्चे, अगर कोई क्लेम करता है जी कि ये मेरा बच्चा है तो व्हाट हैपेंस, क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है? कहा जाता है इनका डीएनए टेस्ट कराएं। व्हाई? बिकॉज आपके जो डीएनए टेस्ट है वो आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करता है और दुनिया में ऐसा नहीं होता कि डीएनए एक बंदे का डीएनए चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं कुछ भी हैं दूसरे बंदे से वेरी करता है। इफ यू सी इन योर फिंगर्स, अपनी फिंगर में अगर आप देखें आपको सर्कल 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 से नजर आते हैं। यू कैन सी देयर आर सो मेनी फिंगर, जिसको फिंगरप्रिंट्स भी कहते हो आप, थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स, ये हर बंदे के दूसरे बंदे से वेरी करते हैं। कुरान पाक में भी ये चीज है और साइंस ने भी ये चीज को शो किया है कि हर एवरी पर्सन हैज डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द अदर वन। ठीक है, तो ये डीएनए ऐसा यूनिक अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर रखा है कि ये किसी बच्चे के पेरेंट्स के स्ट्रक्चर से अगर हम इसको मैच करें देयर आर गोइंग टू बी सम हाउ मैचेस जरूर हैं बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। सो वी कैन गेट एन क्लू फ्रॉम डीएनए टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में डीएनए टेस्टिंग भी आती है। सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है, कोई डकैती हो जाती है, कुछ हो जाता है एंड दे पीपल आर नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड ऑब्वियसली देयर आर सम फिंगरप्रिंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कबर्ड, दैट पर्टिकुलर डोर, तो वहां से आपको पता होगा फोरेंसिक टीम आती है टू कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ डीएनए। या कहीं पे कोई धमाका हो जाता है, आप देखते हो कि न्यूज चल रही है, देयर इज अ फोरेंसिक टीम हु इज डूइंग वर्क ऑन दिस। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये वही बात है कि दिमाग से डीएनए कलेक्ट किया जाता है, फिर जो सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उनके डीएनए को दिया जाता है एंड देन दे आर गोइंग टू मैच इट अप। जहां पे मैच हो जाता है डीएनए तो वहां पे 110% श्योरिटी हो जाती है दिस इज दैट पर्सन। दैट्स व्हाई इस टेक्निक पे इतना रिलाई किया जाता है। ठीक है, देन नंबर 3 क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? Cloning is also amongst the latest biotechnological techniques used in various types of genetic analysis. Animal cloning can be done for can be used for production of animal organs and strong, well-built livestock for quality production of milk and meat. ये सारी की सारी cloning की जाती है एनिमल्स में कि कौन सी वाली स्पीशी जो है वो ज्यादा बेटर मिल्क या मीट की प्रोडक्शन हमें दे सकती है, तो उस पर्पस के लिए इसको क्लोन किया जाता है, इसकी कॉपीज बनाई जाती हैं ज्यादा। ठीक है, now moving on the last application which is about environment, that how it is helpful in our environment. Environment का सबसे बड़ा issue ही हमारा ये है, you can see in Pakistan with the passage of time, like you are in 8th class but when you will be in class 5 और 4 तो आपको पता होगा देयर वर नो स्मोक, बट अब क्या होता है
स्मोक की सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो गई है, इतनी ज़्यादा इंडेक्स एयर क्वालिटी का गिर जाता है जिसकी वजह से हमें स्कूल्स भी इवन बंद करने पड़ जाते हैं बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी डेंजरस फॉर आवरसेल्फ। अभी करंटली तो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बहुत से नुकसानात हैं। ये अस्थमा कॉज़ करती है, मतलब देयर आर सो मेनी अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। तो इस सिलसिले में भी आर्टिफिशियल केमिकल्स या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है आजकल। देयर आर सम टेक्निक्स जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं इन द फ्यूचर, बट पाकिस्तान में इस चीज़ को आने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि पाकिस्तानी जो है उस चीज़ को परचेज़ कर सकें या व्हाटएवर दे वांट टू डू। Environmental problems like pollution, degradation of land and sewage water, etc., are also resolved using biotechnology. Microorganisms, for example, genetically modified bacteria, are used to treat sewage and refuse. They may also be used to clear spilled oil. Microbes, which are used as biopesticides, biofertilizers, biosensors, are being developed by using biotechnology techniques. ठीक है, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हमने डिफरेंट काइंड की चीजें बनाई हैं जो कि आगे हेल्पफुल होती हैं। पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 वी हैव साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। यप, किस तरीके से चारों की तरफ हमें बेटर जो है वो understanding develop होगी that how it is helpful. Biotechnologist, who are biotechnologists? The person who is studying biotechnology is known as biotechnologist. A person who is studying about animals उसको हम बोलते हैं zoologist. Similarly, a person who is master of chemistry is known as chemist. So these are the professions. आपको पता होना चाहिए biotechnologists क्या हैं. Have identified a gene in wheat plant which enables that plant to show tolerance to salts, drought, heat and cold. मीन्स उन्होंने अगर आपने वो इनोकुलेट कर दिया, आपने उसको उस चीज की इंजेक्शन या मेडिसिन दे दी है, वो जीन उधर डाल दिया है, तो जितना मर्जी सॉल्ट हो पानी में, जितनी मर्जी हीट हो, जितनी मर्जी ठंड हो, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली सर्वाइव, राइट? In a research project, when this gene was inserted into tomato and tobacco cells, they withstood the said adverse conditions far better than ordinary cells. If these preliminary मतलब initial results prove successful in larger trials, then this gene can help in producing crops which can better withstand the unfavorable conditions. Gene therapy, genetic testing, cloning, etc. are the examples of biotechnological methods used for treating various diseases. So our chapter goes and these are the important key points which we are going to read one by one, and you can find the definitions over here as well. जब आपको definition proper कोई नहीं मिल रही होती, just move on the key points, you will find out so many definitions. Clear और good words के साथ आपको definition उधर मिल जाती है. The technology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. अब आप देखें human beings के अलावा इसमें प्लांट को भी फायदा है, इसमें फ्रूट्स को भी एडवांटेज है. सो हाउ दे आर गिविंग बेनिफिट टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ये प्लांट्स एनिमल्स these are for human beings. That's why directly or indirectly they are giving benefit to us. The special parts of DNA having information for making specific proteins are called genes. This is the proper definition of genes. Even you can write wherever it comes, like question number chapter number 2 में भी आपसे genes के बारे में पूछा गया. You can also write down this definition as an additional one. ठीक है, इस तरीके से अगर आप amendments करोगे तो you have a more chance to get good marks. Genes are located on chromosomes. The process by which DNA makes its copy is called DNA replication. The use of biotechnology techniques to change the genes of an organism is called genetic modification. This is the definition of genetic modifications. Genetic modification involves the removal, addition or modification of genes. ये three ways हमने पढ़े थे. आपको पता होना चाहिए how a gene
can be modified? Short answer अगर आता है, you must tell that genetic modification involves either the removal, either the addition, or modify the genes. Now, genetic engineering is a biotechnology technique by which a particular gene is cut and transferred from one type of organism to the other type of organism, such as bacterium, जो हमने पढ़ा था, donor organism and transgenic organism. Then what are the parts जिसमें हम desired protein add कर सकते हैं? These are plasmids. The attached genes of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA. जिसमें आपको पता हो कि दो portions किस किस के हैं. The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium. Bacteria which are genetically modified with human insulin gene produce human insulin which controls the glucose level in our blood. Insulin के topic से related है. Nowadays, vaccines produced by genetic engineering are used against the diseases like hepatitis B, foot and mouth disease, and many other diseases. Biotechnology has played a revolutionary role, revolutionary जिसने दुनिया को थोड़ा सा बदल दिया हो, revolutionized किया हो, नई चीज आई हो, जिसने सही मायनों में impact डाला हो. In improving our agriculture and livestock, production of high yields of crops, milk, meat are the results of using biotechnology. Biotechnology is also used for resolving environmental problems like pollution, degradation of land, and sewage water, etc. So this was all for chapter number 4. We are now also going to do the exercise as well. Should we do it now or some other day? Class 8. जी खदीजा बताएं. अभी करवा रहे हैं. अभी करवा लूँ. ओके. व्हाट अबाउट बॉयज? यस टीचर अभी करवा दी. जो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो स्कूल में करवा दें या फिर आप आज ही करवा दें. चलें आज ही कर लेते हैं, सो दैट चैप्टर छोटा सा है, फिनिश हो जाएगा. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर बुक्स. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट. आपके पास पीडीएफ फाइल भी है, यू कैन ओपन इट फ्रॉम दैट. नंबर 1, टीचर पेज नंबर क्या है? 43. मुजम्मिल, यू डोंट हैव द पेज. कैसी बात आप कर रहे हैं बेटे? ये लो टीचर. Okay, I am sharing the whiteboard with you so that you can see the answers over there. All right.